So I would like to welcome you all officially to the first class for introductory statistical methods for economics. So what is the agenda going to be for today's class? We won't be doing too many concepts. Actually, no concept we will be doing. We will be discussing your syllabus. आपका syllabus क्या होगा? What all readings you have to refer? And आपका exam pattern क्या होगा? और generally इस पेपर को आप किस तरीके से अप्रोच कर सकते हो? We will be talking about that. So yeah, okay. Hi Vaishnavi. Good evening. All right, first of all, आपकी readings क्या होने वाली हैं? So there are two core books that you will be following, which is Devore and Hawk. दो books होंगी आपकी, the Devore book and the Hawk book. ठीक है, इनमें जो टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं. हर रेफरेंस, हर टॉपिक के लिए उन्होंने दोनों में रेफरेंस दी हुई है. सो आप एक बुक को फॉलो कर सकते हो या दूसरी बुक को फॉलो कर सकते हो. ठीक है, यूजुअली बहुत पुराने टाइम से हम लोग डिवोर को ही फॉलो करते आ रहे हैं. ठीक है, सो पहले ये कोर्स जो है सेमेस्टर 3 में हुआ करता था. Like earlier, it was a single course which used to be offered in semester 3, but now what has happened? Introductory starts अलग कर दिया है. एंड उसके जो आगे के स्टेप्स हैं, इंटरमीडिएट स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, दैट हैज आल्सो बीन सेपरेटेड. सो नाउ it's a 2-part course. So introductory statistics, intermediate statistics, and then later on you will have econometrics, which is the next step from that. ठीक है, so just to give you a little bit of brief, the Devore and Hogg book, so Hogg, Tennis and Zimmerman, so these two are the books that you will be referring. ये आपके core text books होंगे. So जो भी सारे concepts आपको करने हैं ये इस book से करने हैं, और जो भी practice problems होंगे वो इन्हीं के back problems, solved problems, वो सब आप लोग cover करोगे. ठीक है, you also have a list of chapter wise exclusions. मतलब वो कौन कौन से pages हैं या वो कौन कौन से topics हैं जो आपको avoid करने हैं, वो भी we will see here because it is very clearly mentioned. So we will be discussing that also in detail here. Okay, so that is the next thing. And then there are a few topics which you do not have to do, which is something called moment generating functions. ये सब आपको नहीं करना है, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा. later on when you get deeper and deeper into the course you will realize कि मतलब अभी बहुत सारे टॉपिक्स बिल्कुल नए हैं आपके लिए. So this is just a foreign word for you, moment generating function. This you do not have to do. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, जो इंट्रोडक्शन है, उसके अंदर कुछ कुछ टॉपिक्स हैं विच आर देयर. लाइक देयर इज वन टॉपिक, स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले. ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि इन पे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज टॉपिक्स. यू शुड नो what is the basic meaning of stem and leaf display. You won't be asked please draw a stem and leaf diagram for it. So ऐसा नहीं होगा, but you should just be aware of the basics of what this particular topic means. ठीक है, उसके अलावा स्टेटिस्टिक्स में बहुत सारे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस भी होते हैं, लाइक पाई चार्ट, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, ये सब होते हैं. तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पेपर में जहां पे यू विल बी आस्क्ड टू ड्रॉ दैट. ठीक है, so here they are saying only analytical questions can be asked on the pictorial representation. So जो भी pictorial representation है, they won't ask you to draw that, make that particular diagram. They can give you a diagram and ask questions based on that. So that is the meaning of analytical questions being asked from a pictorial representation. ठीक है, so that is the next thing that they have. Apart from that, जब आप आगे जाके there is a chapter which will come which will be talking about continuous random variable, joint continuous random variable. वहां पे there is a concept, there is a mathematical concept जो लगेगा which is double integration. So double integration के बारे में अभी आपको कोई knowledge नहीं है ज्यादा. तो it has been said that इससे related जो भी topics हैं या जो भी ideas हैं वो बिल्कुल simple level पे आपको समझाए जाने चाहिए या आपसे पूछे जाने चाहिए. So they will not be complicating this particular idea because anyways जो आपका मैथ्स पेपर है, इंट्रोडक्टरी मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स, उसमें भी आपके इस बार इंटीग्रेशन नहीं है. दैट कम्स इन द सेमेस्टर 3, इंटीग्रेशन कम्स देयर. सो they won't be asking very very difficult questions based on double integration. So double integration क्या होता है वो बेसिक हम लोग कर लेंगे और उसका बेसिक एप्लीकेशन जो है वो आपको करना होगा. ठीक है, so these are a few remarks that they have. So
ऑल राइट, दीज आर द 3 things that you can keep in mind regarding कौन कौन सी चीजें स्किप करनी है, ठीक है। उसके अलावा देर विल बी अ फ्यू डिस्कशन रिगार्डिंग व्हाट काइंड ऑफ पेपर यू विल बी हैविंग, सो ये हम लोग थोड़ी देर में करेंगे आफ्टर वी डिस्कस हमारा पेपर में क्या क्या टॉपिक्स होने वाले हैं, ठीक है। सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट। ऑल राइट, सो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक्स हैं वो क्या होने वाले हैं। द फर्स्ट यूनिट इज गोइंग टू बी द इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू। So I'm guessing all of you have done statistics somewhere in your class 12 and 11. थोड़े बहुत टॉपिक्स आपने किए होंगे, लेकिन अभी तक जो भी आपकी ट्रीटमेंट हुई है, जो भी आपने स्टेटिस्टिक्स में पढ़ा है, that is descriptive statistics. Descriptive statistics मतलब you describe whatever data is made available to you. So you describe it using numbers, you describe it using pictures. ये सब होता है, राइट। आप मीन कैसे निकालते हैं वो देखते हो, मीडियन कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालते हैं, हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनती है, ये सब आप करते हो, राइट। सो यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग यूजिंग दैट डेटा, यू आर जस्ट, आपको एक डेटा दिया हुआ है और उस डेटा को कुछ मीनिंगफुल नंबर्स और डायग्राम्स का यूज करके आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्राइबिंग द डेटा, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप बेसिक्स करोगे। सो पॉपुलेशन क्या होती है, ठीक है, सैंपल्स क्या होते हैं, वो सब आप पढ़ोगे। पॉपुलेशन के पैरामीटर्स क्या होते हैं, सैंपल के पैरामीटर्स या सैंपल स्टैटिस्टिक्स जिसको बोलते हैं, वो सब क्या होते हैं, सैंपल मीन, सैंपल वेरिएंस, सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सब क्या होता है। Then you will be doing different sorts of pictorial methods like box plot क्या होता है, stem and leaf diagram क्या होता है, ये सब हम लोग करने वाले हैं। histogram क्या होता है, bar graph क्या होता है, dot, एक dot and why am I forgetting the name? There is one more diagram that we will have. We will be discussing measures of locations. Like मतलब अगर आपको पूरे डेटा को एक सेंट्रल नंबर से रिप्रेजेंट करना हो तो वो क्या होगा। सो मीन, मीडियन, मोड, परसेंटाइल, क्वार्टाइल, ये सब क्या है, मेजर्स ऑफ लोकेशन, ठीक है। वो सब हम लोग करेंगे। एंड देन वी विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट वेरिएबिलिटी। सो मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी क्या क्या होते हैं वो सब भी हम लोग देखेंगे, जैसे कि स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया, रेंज हो गया, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे इन द मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। यस रिद्धिमा, you have a question? Was it the dot plot which you were saying, the dot plot? Yeah, sorry. Dot plot I meant to say. Yeah, dot plot. Yes. Thank you. Okay. All right. Sometimes it just doesn't come to your head. Okay. So, yeah. सो सारा जो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स का पोर्शन है वो सब आप लोग करोगे। तो एक तरीके से इफ आई से दिस इज अ यूनिट विच विल बी काइंड ऑफ लिटिल फेमिलियर टू यू, इसमें बहुत सारी चीजें जो आपने ऑलरेडी की हुई हैं, कुछ थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट होंगे जो नए होंगे। सो थोड़ा बहुत आपने ऑलरेडी अपने क्लास 11-12 में किया हुआ है और थोड़ा बहुत न्यू एडिशन होंगे, थोड़े अलग अलग तरीके के डायग्राम्स, ठीक है, बॉक्स प्लॉट, डॉट प्लॉट, लीफ, स्टेम एंड लीफ डायग्राम्स, ये सब, ठीक है। और ट्रिम्ड मीन क्या होता है, कितनी % ट्रिमिंग करें, ठीक है, आउटलायर्स के साथ कैसे टैकल करें, ये सब चीजें भी आप करने वाले हो, ठीक है। सो ये हमारी पहली यूनिट होगी। उसके बाद वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट यूनिट विच इज एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थियोरी। सो ये भी टॉपिक है जो थोड़ा बहुत आपने किया हुआ है इन योर क्लास 12 मैथमेटिक्स, राइट। सो यू हैव प्रोबेबिलिटी इन योर क्लास 12 और 11? 12 you guys have done, right? Bayes theorem, conditional probability, intersection, ये सब आपने किया है, right? So हम लोग, हमारा जो सेकंड यूनिट होगा वो भी प्रोबेबिलिटी बेस्ड होगा। तो प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, नल सेट क्या होता है, अलग अलग इवेंट्स क्या होते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं, राइट। What are some basic axioms that we have regarding probability? Axioms क्या होते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट को आपको स्टडी करने के लिए कुछ फाउंडिंग assumptions होती हैं, राइट, कि ये बिल्कुल बेस है, इससे नीचे नहीं जा सकते। जैसे मैथ्स में क्या होता है, नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, कोई ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 मतलब क्या होता है, 2 मतलब क्या होता है, राइट। सो जो बेसिक चीजें होती हैं जिसपे पूरा सब्जेक्ट बिल्ट अप होता है उसको बोलते हैं एक्सियम्स। तो प्रोबेबिलिटी की क्या क्या एक्सियम्स हैं
और उन एक्सियम्स का यूज करके आप अलग अलग और क्या प्रॉपर्टीज डेराइव कर सकते हो, कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी या सारे इवेंट्स को अगर ऐड कर दिया जाए तो प्रोबेबिलिटी 1 होगी। इस तरीके के अलग अलग अजम्पशंस जो है हम लोग देखेंगे, और थोड़े बहुत प्रूफ्स भी इसमें हम लोग करेंगे, ठीक है। देन वी विल बी डिस्कसिंग काउंटिंग टेक्निक्स। काउंटिंग टेक्निक्स का मतलब क्या होगा कि जैसे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे कि अलग अलग इवेंट्स में कितने एलिमेंट्स हैं, वो कैसे करें, वो कैसे पता करें, कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, वो सब के बारे में बातें करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मीनिंग कि अगर कोई एक इवेंट हो गया है, the moment you know that something has happened, after that what is the probability of some other event. So conditional probability की बातें होंगी, फिर बेस रूल की बारे में बातें होंगी, सो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, प्रायर प्रोबेबिलिटी, ये सब हम लोग करेंगे। एंड देन फाइनली इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट्स। when do you say two events are independent, how do you check that, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट होंगे। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपने ऑलरेडी की हुई हैं, बट जिस तरीके से ट्रीटमेंट मिलता है क्लास 12 में इस पर्टिकुलर टॉपिक को, वो बहुत क्वेश्चन बेस्ड होता है, ठीक है। अभी इसमें जब आप चीजें करोगे, सो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक्स एंड हाउ प्रोबेबिलिटी हैज काइंड ऑफ स्टार्टेड, कि 3-4 एक्सियम्स हैं, उसका यूज करके सारी चीजें कैसे डराइव होती हैं, वो सब हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये दो यूनिट हैं, ये थोड़ी फेमिलियर हैं आपके लिए, ये आपने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चीजें होती हुई देखी हैं, ठीक है। सो इसको करने में आपको कोई प्रॉब्लम वैसे ज्यादा आएगी नहीं, ठीक है, बिकॉज लिटिल फेमिलियरिटी इज देयर। उसके बाद जो बिल्कुल नई चीज है आपके लिए, वो होगी रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। तो द थर्ड यूनिट दैट वी विल बी हैविंग इज रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि रैंडम वेरिएबल एक्चुअली क्या चीज है, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल में हम लोग सैंपल स्पेस से रियल नंबर्स पे आएंगे। सैंपल स्पेस में क्या होता है, अलग अलग पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट होते हैं। तो वो आउटकम्स हैं, आउटकम कुछ भी हो सकता है, डाई पे नंबर 1 आना, कॉइन पे हेड आना, कॉइन पे टेल आना, तो वो सारे क्या हैं, आउटकम्स हैं। और वो आउटकम जो होता है वो आप इंग्लिश में भी डिफाइन कर सकते हो, वो आउटकम कोई नंबर भी हो सकता है। तो वो आउटकम जो है, जो इंग्लिश में आप बोल रहे हो या कोई भी इवेंट को आप डिस्क्राइब कर रहे हो, उसको नंबर्स में, रियल नंबर्स में कन्वर्ट करने का तरीका है रैंडम वेरिएबल। तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे, रैंडम वेरिएबल क्या होता है क्या नहीं होता है। तो यहां से आप रैंडम वेरिएबल्स पे आओगे, सैंपल स्पेस टू रियल नंबर्स, तो वो रैंडम वेरिएबल्स होंगे। तो रैंडम वेरिएबल क्या होता है, किस किस तरीके के रैंडम वेरिएबल्स होते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स एंड कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, राइट। सो डिस्क्रीट का मतलब होता है कि जब आपके नंबर्स जो हैं जंप करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल मतलब any number which is between 0 and 1. So there are infinite numbers that are there. Continuously कुछ भी नंबर आ सकता है, ठीक है। So discrete random variable क्या होता है, continuous random variable क्या होता है, ये सब देखेंगे। और हर रैंडम वेरिएबल से एसोसिएटेड कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो सब देखेंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू को एवरेज वैल्यू भी बोलते हैं। तो एवरेज वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। और आप अपने रैंडम वेरिएबल का यूज करके और क्या क्या कर सकते हो, वो सब हम लोग देखेंगे। सो आई नो nothing is going on in your head regarding all these topics, but all of this will become simpler gradually over time, ठीक है। So random variables करेंगे, and then our fourth unit would be based on some special type of probability distribution. तो कुछ special type के random variables होते हैं जो आपको throughout statistics देखने को मिलेंगे। तो चाहे आप फिर इसके बाद intermediate statistics का पेपर देख लो या econometrics देख लो, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल तो आपने पढ़ा भी होगा कि यू रिमेम्बर द स्टोरी कि अगर you perform an experiment 10 times, you throw a coin 10 times, what is the number of times you get a head? So उसमें आप निकालते थे probability कि probability of getting 0 head, 1 head, 2 head. Have you done that ever? 5 head, 6 head, 10 heads?
एनसीआर वाला फॉर्मूला। एग्जैक्टली। सो बाइनोमियल जो वो आप करते थे वो एक्चुअली एक बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल था, ठीक है। तो बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल क्या होता है, एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल क्या होता है, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल क्या होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो हर डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे एक ना एक स्टोरी है, तो वो स्टोरीज के थ्रू हम लोग सारी चीजें समझेंगे और फिर देखेंगे कि वो रैंडम वेरिएबल क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसकी एवरेज वैल्यू क्या है, उसकी वेरिएंस क्या है। ये हर रैंडम वेरिएबल से एसोसिएटेड चीजें होंगी, तो वो हम लोग देखेंगे। एंड फाइनली once you understand the concept of random variable and different sorts of random variables and their probability distribution, फिर हम लोग बात करेंगे रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है। तो जैसे स्टेटिस्टिक्स में आपका मेन मुद्दा हमेशा, मेन लॉजिक ऑफ रीडिंग स्टेटिस्टिक्स और द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एंटायर सब्जेक्ट इज बिकॉज we do not have the resources, capabilities, time and money to go and collect data on the population। पूरी population के लिए data collect करना हमारे लिए possible नहीं है। इसीलिए to study any subject या any theory, any observation, what do we do? वो जो पॉपुलेशन है उसमें से कुछ आइटम्स हम लोग पिक करते हैं जिसको बोलते हैं सैम्पलिंग। तो रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है एक्चुअली किस चीज का पार्ट बन रही हैं, इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स। दूसरी ब्रांच ऑफ स्टेटिस्टिक्स होती है इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स, जिसमें आप क्या करते हो कि डेटा दिया हुआ है, पॉपुलेशन है आपके पास, पॉपुलेशन को कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो पॉपुलेशन में से एक स्मॉलर पोर्शन आपने पिक किया, उसको स्टडी किया, उस छोटे से हिस्से को, उससे आपने कुछ इन्फर किया और पॉपुलेशन के बारे में कुछ बोलना शुरू किया। So you are inferring some information about your population using the sample that you have picked up. So उसके basic tools हम लोग अभी पढ़ेंगे और उसकी applications और किस तरीके से चीजें होती है वो फिर हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में इंटरमीडिएट स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स जो है उस कोर्स में हम लोग आगे जाके करेंगे। और इस पूरे का जो एप्लीकेशन है, इस पूरे स्टैटिस्टिकल टूल का जो एप्लीकेशन है ऑन इकोनॉमिक थ्योरी, दैट वी विल बी रीडिंग इन इकोनॉमेट्रिक्स। सो जॉइंटली दो रैंडम वेरिएबल्स को किस तरीके से उनके डिस्ट्रीब्यूशन को समझा जा सकता है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स पढ़ेंगे, उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, उनके कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशंस, कोवेरिएंस, कोरिलेशन बिटवीन two random variables, covariance between two random variables. So we will be discussing all of that, ठीक है। तो ये जो है ब्रॉडली आपका पूरा का पूरा कोर्स रहेगा, तो जिसमें the first 2 units won't be too difficult for you. Actually difficult तो कुछ नहीं होगा, but it's just that there is some newness with all the rest of the units starting from 3 and then 4 and then 5. So that is basically your entire course. So introduction, probability, then random variable, then getting in depth about random variable, and then talking about joint distribution of random variables. ये आपका कोर्स रहेगा, ठीक है। Any doubts so far? Anybody? Are we okay with this? Yes, ma'am. Okay. Hi Pavitra. Hi Nikhil. All right. Okay. In case anybody has any doubt at any point, feel free to post it in the chat, or you can also raise your hands. Okay. All right. So moving on, इसके लिए क्या क्या आपके रेफरेंस बुक हैं वो हमने देखा है। डेवोर जो है उसका 2012 एडिशन। सो डेवोर, द नेम ऑफ द बुक इज प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर्स। सो ये काफी पॉपुलर बुक है जो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स स्टूडेंट की प्रेफरिंग आगे जाके जो सेमेस्टर नेक्स्ट सेमेस्टर है उसमें भी आपको ये रेलेवेंट रहेगी। बहुत सारे टॉपिक्स आप इस बुक में से ही करोगे। And the other book is Hogg, Tennis and Zimmerman, Probability and Statistical Inference, which is the 10th edition. ठीक है। This book has been referred as an essential reading, but this has not been mentioned anywhere. So there's no need to think about this particular book. Okay. So some people ask regarding whether they should buy the books or not. Actually, there is no point in buying the books. I mean, if you want, if you are a reader like that, you can definitely buy it. But by now you've realized that you get readings from college photocopy shops. You can get
whatever chapters you are having in that reading, and then you can refer that. Have you guys bought the readings or not? Yes, ma'am. You have, right? Okay. So मतलब हर कॉलेज में फोटोकॉपी शॉप जो होती है typically वहां पे मिल जाता है, and then there are some central places also where you can get it. So North Campus में भी एक तो जगह है जहाँ पे they do home delivery also. So yeah, something like that can be done. बाकी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वहां पे भी एक फोटोकॉपी शॉप है जहाँ से सारी रीडिंग्स अवेलेबल हो जाती हैं. So आप you just tell them this is the semester and then they'll give you everything. Okay. All right. So ये हमारे दो बुक्स हैं, डिवॉर एंड हॉग. एंड अगर मैं डिटेल में जाऊं तो पहला जो चैप्टर है जो हमारा पहली जो यूनिट है इंट्रोडक्शन, दैट will be from chapter number 1, Devour. The next probability would be from chapter number 2, Devour, and chapter number 1, Hog. So आप एक ही बुक से रेफर कर सकते हो, दूसरी बुक को एज प्रैक्टिस आप यूज कर सकते हो उसके क्वेश्चंस को रेफर करने के लिए. Similarly, for random variable and probability distribution, we have to refer chapter number 3 and chapter number 4 from Devour. उसके कुछ sections. Actually हमें पूरा ही chapter करना है because ये जो special probability functions हैं ये भी इसी के कुछ sections में से होने वाले हैं. So actually entire chapter 3 and chapter 4 will be a part of your course. So इसमें से क्या नहीं करना है वो उन्होंने specifically mention किया है. You do not have to do negative binomial distribution and you do not have to do gamma distribution. ये सारे distribution आपको skip करने हैं. उसके अलावा entire chapter 3 and chapter 4 of Devour you have to do. Apart from that, हॉग बुक में से ये वाले रेफरेंसेस कहाँ से हैं और ये वाले रेफरेंसेस कहाँ से हैं वो भी दिया हुआ है. सो चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, और इसमें से भी जो जो चीजें स्किप करनी है वो उन्होंने दी हुई है. ठीक है. So specific section they have given which you have to pay your attention to. You do not have to think about gamma distribution, chi-square distribution, and MGF treatment. So earlier we were studying something like moment generating function, right? Which you do not have to do here. So this is the same MGF that is there. So ये MGF related चीजें आपको नहीं करनी है. ठीक है. And apart from that, this particular final chapter which is random sampling and joint distribution, चैप्टर 5 जो है उसके कुछ सेक्शंस आपको कवर करने हैं. सेक्शन डिवोर बुक 5.1 to 3 and then 4 and 5. So basically entire chapter 5. It only has 5 sections only. ठीक है. And this particular book, chapter number 4. So अगर मैं broadly without the exceptions and exclusions बोलूं, so जो डिवोर बुक है उसके chapter number 1 to chapter number 5 will be your reference. And if you want, you can also refer chapter number 2, chapter number 1, chapter number 2, chapter number 3, and then chapter number 4 from the Hog book as well. So ये 5 chapters आपके Devour book से, and ये 4 chapters from your book Hog. ठीक है. If you want, you can if you just do a Google search, you can also find these books online. So that option is also available. ठीक है. ये आपके references होंगे for individual units and individual chapters. ठीक है. So is that fine, guys? So far so good. Let's move on. Okay, moving on. All right, so now the final thing that we have is regarding your exams. आपका exam pattern क्या होगा? So पहली बात तो just a basic discussion which is आपका पेपर जो है 90 मार्क्स का होगा. 90 मार्क्स आपका फाइनल होगा and 70 मार्क्स के अंदर आपका इंटरनल असेसमेंट होगा. Plus your continuous assessment as well. So इसके अंदर आपकी अटेंडेंस हो गई, आपके क्विजेस हो गए, आपके क्लास टेस्ट हो गए, या कोई असाइनमेंट दैट योर क्लास टीचर सेज. So this is actually a very big chunk of your total exam. And some students have this doubt that if we don't pay too much attention here, can we just make up for it here? No, actually.
You have to individually pass here also and here also. So be very careful regarding this particular portion. So if you're just a little sincere and a little regular in your classes, you can make up for most of it, right? So please do not lose these marks. You have marks for attendance here as well, and then there will be quizzes and tests and assignments. So if you want to know more details, this will be very, very specific to your class teachers, whosoever is teaching you. So if you want to know more about that, please talk to them, ask more about it to them. ठीक है, but हाँ बहुत मेजर चंक है, so सारा फोकस पहले इस पे सिर्फ नहीं करना है. Just be a little careful about this. If you are just a little regular, it will be fine. Okay, and this actually holds for all of your core subjects. So 70 marks for your continuous evaluation throughout your entire semester, and then rest 90 marks for your final paper. ठीक है. अच्छा जी, अब ये जो फाइनल पेपर है इसका पैटर्न क्या है, that we are going to talk about. See here is जो आपके यूनिट 1 का वेटेज होगा दैट विल बी 10 मार्क्स, यूनिट 2 का वेटेज होगा 10 मार्क्स, यूनिट 3 का वेटेज होगा 20 मार्क्स, यूनिट 4 का वेटेज होगा 30 मार्क्स, एंड यूनिट 5 का वेटेज होगा 20 मार्क्स. So this will basically be the weightage, and if you sum it up, it is actually 90. ठीक है. So ठीक है, इन्होंने इंडिविजुअली भी बता दिया है. So 10 marks and then 20 and then 30 and then 20. So basically जो content आपको already पता है उसको बहुत कम weightage इन्होंने दी है 20 marks, and rest everything is for 70 marks. So I mean you should do your focus accordingly. ठीक है. Apart from that, regarding the paper pattern, what they have said is question paper is actually divided into 2 parts. So there will be part A and then there will be part B. So part A mein there will be 4 questions from unit 1, 2 and 3. So these 3 units question will be asked. Okay, very, very nice. They have elaborated everything. So all right. Okay, so Riddhima has mentioned, if anybody wants to take the photocopy, it's MH photocopy shop, 640 rupees for all 3 readings. Okay, perfect. Yeah. Okay, MH is Miranda House, right? Yes, ma'am. Okay, okay. So yeah, so part A may we will have 4 questions from first and second and third unit, and then they've said कि जो first question होगा that would be from unit 1. And it will be worth 10 marks and it will be compulsory. So unit 1 तो compulsory है attempt करना, ठीक है. So that is the situation with the first question. And then out of, so because there are 4 questions, so then there will be 3 questions more from unit 2 and 3. Out of which you will have to do 2. ठीक है. So this is your first section, part A. 4 questions. First question compulsory, unit 1, and then rest of the 3 questions from unit 2 and 3. And out of there, you can choose to skip 1. So basically, you have to do 2 out of 3. ठीक है. This is the situation with the first part of your part A of your exam. And then part B, if we move on. And okay, they have went further and elaborated even more. So they said question 2, 3, 4 will have 1 part of 5 marks from unit 2 and 1 part of 10 marks from unit 3. So ये जो 3 questions हैं जो इन्होंने यहाँ पे देने हैं 3 question, इसका इन्होंने structure भी बता दिया है कि ये जो 3 question होंगे ये actually total कितने मार्क्स के होंगे. सो यू विल हैव टू एक्चुअली अटेम्प्ट 2. सो 15 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे तीनों, जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से कोई भी एक क्वेश्चन में एक हिस्सा यूनिट 1 से होगा, सॉरी यूनिट 2 से होगा. इट विल बी फॉर 5 मार्क्स
and then the rest next part जो है that will be from unit 3 which will be of 10 marks. Very detailed elaboration they have done. Okay, so 3 questions. हर क्वेश्चन में 2 सब पार्ट्स होंगे, एक यूनिट 2 से आएगा, एक यूनिट 3 से आएगा. ठीक है, यूनिट 2 वाले जो मार्क्स होंगे वो 5 मार्क्स के होंगे, यूनिट 3 वाला जो पार्ट होगा वो 10 मार्क्स का होगा. दिस इंटायर डिस्कशन कवर्स व्हाट विल बी देयर इन योर फर्स्ट पार्ट. ठीक है, सो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया. अब सेकेंड पार्ट के लिए आपके पास क्या क्या बच गया? यू हैव यूनिट 4 and 5 which is left. So what will happen over there? Let's see. So for the next unit, for the next section, section B, part B, you will have questions. You will have 3 questions from unit 4 and 5, and students will have to attempt 2 out of 3. 2 out of 3. Okay, so जो भी अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 6 and 7. ठीक है, so question number 5, question number 6 and question number 7. 3 questions you have. You have to attempt 2 out of these 3. And what is the bifurcation? First of all, they will have 2 parts again of 5 and 10 marks each from unit 4 and 1 part of 10 marks from unit 5. So what are they saying? 5, 6, 7 में क्या होगा? We will have 2 parts of 5 and 10 marks from unit 4 and 1 part of 10 marks from unit 5. So basically it will be like this. So 5 marks, 10 marks, 10 marks. This is unit 4. This is unit 4. And this will be unit 5. So this is how all these 3 questions will be. So अगर आप calculate करोगे, so this is 25 marks. और यहाँ पे आपको दूसरा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है तो 25 मार्क्स. सो टोटल सेक्शन बी विल कैरी 50 मार्क्स, राइट? एंड यहाँ पे दिस विल बी 10 मार्क्स एंड यहाँ पे दिस इज 15 and 15, so that will be 30, right? So 10, 30 and 50, so you have a total of 90 marks. So they have exactly told you what you can or cannot do. So even if somebody tries to do specific units, they can calculate what is the maximum possible marks you can score. Okay, so बहुत clearly, बहुत प्यार से इन्होंने सब चीज specify की है. So yeah, that is what you have to do. And आपके जो आपका जो पेपर है उसमें कई बार हो सकता है टेबल्स का यूज हो, बायनोमियल टेबल. कुछ टेबल्स जो है आपकी डेवोर की बुक में होंगी. सो जो टेबल्स होंगी वो आपको डेवोर की ही टेबल्स क्वेश्चन पेपर में भी प्रोवाइड करी जाएंगी. एंड दैट इज देयर. Continuous evaluation will be for 35 marks. Tutorial attendance will be for 5 marks. Internal assessment will consist of 12 marks class test and 12 marks class test or assignment, and attendance will be 6 marks. So multiple things are there. All right. That's fine. Yeah, so rest everything remains the same. Only they have specified very well the exam pattern. एंड उसके अलावा फाइनल एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए जो कुछ बेसिक तरीके हैं वो भी उन्होंने बताए हुए हैं कि सारे क्वेश्चंस जो हैं within each section they are to be answered in a continuous manner. So because एक क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं, so try to do all of them in a sequence and start each question on a new page and all subsections should follow one another. ठीक है, so जब भी आपका नया क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए you should start with a new page. And apart from that, because statistics में बहुत सारे calculations होंगे, so what they have specified is जो भी calculation आप करोगे उनको आपको 3 decimal तक round off करना है. So if you have let's say 5 decimal coming up, you have to round it off till 3 decimal. ठीक है, round off to 3 decimal. And जो भी टेबल्स में जो चीजें होती हैं वो अभी कभी भी आपको राउंड ऑफ नहीं करनी है. जो भी टेबल्स दिए होंगे उस टेबल क्या होंगी, कैसी होंगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल्स अभी आप जाके आगे देखोगे, तो टेबल्स में जो भी है उसको बिल्कुल राउंड ऑफ नहीं करना है. और सारी कैलकुलेशन जो फाइनल वाली है
जो बिल्कुल आंसर खत्म हो गया है, एंड में सिर्फ आंसर आना है, उसको 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है। सो ये इन्होंने चीजें बताई हुई हैं। तो ये काफी डिटेल में इन्होंने रीडिंग्स में बताया हुआ है कि क्या क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसा है, और क्या क्या होने वाला है। रीडिंग्स रिमेन द सेम, टॉपिक रिमेन द सेम, एंड या दैट्स दैट्स प्रीटी मच इट। सो एक रिकैप अगर करें तो 5 यूनिट्स हैं हमारी, 5 चैप्टर्स हैं डिवोर के, ठीक है। पेपर पैटर्न सेक्शन ए सेक्शन बी देख लो, जिसको अगर सिलेक्टिव रीडिंग करनी है, जो कि लेटर स्टेज में जाके हो जाता है, तो पेपर पैटर्न बताया हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो चीजें, बट दैट शुड नॉट बी द इंटेंशन टू बिगिन विथ, ऑलराइट। एंड या इसके अलावा आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए डिवोर जो बुक है उसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, उसके बैक प्रॉब्लम्स, एंड उसके अलावा जैसे जो हॉग बुक है उसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल, उसके बैक प्रॉब्लम्स, और उसके अलावा जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, जो एक तो पेपर जो एग्जैक्टली आपके सीनियर्स का हुआ था, बिल्कुल जो कोर्स आप पढ़ रहे हो उसी को ध्यान में रखते हुए, सो दैट इज वन रेफरेंस फॉर यू टू डिसाइड व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो पहले उन्होंने इतना इस तरीके से बाइफरकेट करके चीजें नहीं दी थी, बट ये आपके लिए बेस्ट एस्टिमेट है कि आगे जाके पेपर कैसा बन सकता है। एंड उसके अलावा पहले भी ये कोर्स जो है सेमेस्टर 3 में ऑफर करते थे, बट उस कोर्स में थोड़ा सा ज्यादा कंटेंट था, तो उसके सिलेक्टिव क्वेश्चंस जो है आपके लिए रेलेवेंट हो सकते हैं। तो ये 4-5 2-3 चीजें हैं जो आप फॉर प्रैक्टिस यूज कर सकते हो। सो पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ योर सीनियर बैच एंड योर अदर सीनियर बैच, योर सीनियर बैचेस, उसमें से सिलेक्टिव क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू दीज यूनिट्स, एंड देन डिवोर बुक बैक प्रॉब्लम्स, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, एंड हॉग बुक बैक प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। ये जो है आपका पूरा जो है प्रैक्टिस मटेरियल होगा, ठीक है। दिस इज द एंटायर सिलेबस एंड एवरीथिंग। और जनरली अगर मैं सजेस्ट करूँ तो ऐसा नहीं है कि ये कोर्स बहुत मतलब बहुत नई चीजें हैं, तो रेगुलरिटी वुड मैटर, इवन इफ यू ट्राई टू स्पेंड 1 hour every day, or 1 hour 3-4 days in a week, that will be good. So do not take this lightly. Starting में it's very easy to get swept away with so much things going on in college, and I also understand you should spend your time at different places, which you will be doing, I know. But don't just keep this touch out of your studies. Also considering the fact that you have 70 marks of your final paper assigned to it, so just be a little careful about that also, ठीक है। So ये हमारी पूरी situation है। किसी को कोई भी query है इससे related, feel free to ask. And yeah, regarding a few more things regarding the course I would like to tell you, just things that you can expect in this course. Firstly, we will have live classes. So every Tuesday and Thursday, we will be having our live classes. This class we had at 6:30. I mean, 6 to 7, we've planned this class. But every single time we will have this class from 7 to 9:30. So Tuesday and Thursday, we will have the class from 7 to 9:30. Or we can also push it from 6 to 8:30, depending on the situation and what the students would like to have. Every live class is recorded and you also get the access to that. All the chapter notes are also provided. And after the finishing of every single chapter, we discuss a few past year questions. And, there's a WhatsApp group also wherein you can ask your doubts or any other queries that you might have. And after, like our entire everything, all concepts are over, we keep having regular doubt session till the end of your exam. And apart from that, we try to keep other doubt sessions as well in the middle also, if your doubt starts to come. And in case of any queries, you always have the access to me. You can WhatsApp me or call me, that will be fine. And anybody who would like to take up this course, you can enroll on our website. This is the website, www.poonamkumari.com/learn. So all the course details will be available there. Okay. So yeah, this is pretty much it that I'd planned for today. In case you have any queries, feel free to ask. Otherwise, I think that is all that I had planned for today's class. Thank you so much for joining in. Thank you so much, guys.